Hello students, welcome you back in class 10th. Today we are going to start the chapter number 2 of our civics chapter, that is civics book, that is federalism. Okay, what does the federalism mean? We are going to discuss about in this chapter, and we will discuss about the various forms of federalism and how federalism is practiced in our country. So federalism is a system of government in which Federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and the various constituent units. Constituent units means here state. Okay, clear? In our country, these constituent units are called as state and local self-government also. It is a vertical form of government, as we have discussed in the power sharing chapter. There are 4 forms of government and federalism is a vertical form of government. Okay, clear? Horizontal form is legislature, executive and judiciary, that you know well. Now we are going to discuss about the vertical form of government. How does they work and what is that? Vertical form is the topmost central government, below that one will be the state government, and after that local self-government, third tier has been introduced. After that we are going to discuss about the next one. Before that we are going to discuss the new form of government, that is unitary government. Okay, and we will try to discuss about what are the difference between the unitary and federal form of the government. Okay, clear? There is only in the unitary form of government, there is only one level of government, and if more than one level of government subunit discussed exist, then subunits are the subordinatory to the central government. Subordinatory means assistant. They will not take any decisions or they will not issue the order to other parts. They have to follow the orders issued by the central government. So it means that the central government can only pass the laws, and after that subunit have to follow it. But just opposite to the unitary form of government, federal form of government exists, that is two or more level of more level of government is there. In our country there are 3 level of government. Central government cannot order the state government to do the something. कुछ करने के लिए central government का order नहीं कर सकती, और state government के पास अपनी खुद की power भी होती है और वो इसके लिए उन power के प्रति responsible होती है separately. Okay, clear? Then after that we are going to discuss about the main features of federal. India is following which form of government? In India there is a federal form of government. Okay, clear? And India we are following the federal form of government where we can see the various features of फेडरलिज्म. सबसे पहला तो यही है, फेडरलिज्म का मीनिंग यही था कि मोर लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, दोनों ही जो बोथ द लेवल्स कंट्रोल टू और द सेम सिटीजन, बट दे हैव द सेपरेट ज्यूरिडिक्शन एरिया. ये क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट वन कि आपका जो है वोटर्स विल बी द सेम फॉर इलेक्टिंग बोथ द गवर्नमेंट्स, एंड बोथ द गवर्नमेंट्स विल इश्यू द ऑर्डर ऑन द सेम गवर्नमेंट. एक मतलब सेम लोगों के लिए ऑर्डर इशू करती है, लेकिन उनके अपने अपने खुद के एरिया होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सर्टेन इश्यूज या मैटर के ऊपर अपने डिसीजन लेती है, लॉज एंड ऑर्डर इशू करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अलग अलग मैटर से रिलेटेड, और यदि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट जो रहता है वो जो क्या करता है उसके लिए वो काम करता है एज ए अपेक्स पावर. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपेक्स पावर के रूप में काम करेगा. ज्यूरिडिक्शन इन द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है वो देखेंगे. और दे जो है और इसी वजह से क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट के जो किसी भी लेवल के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकते कोई पर्टिकुलर एक लेवल. देयर इज अ सिस्टम गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देन आफ्टर दैट court have power to interpret the constitution and powers of the different level of government. कोर्ट्स के पास पावर रहती है कि वो क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे, इंटरप्रेट करे, और क्या करे, पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट की जो पावर है उसको जो है उसमें चेंजेस करना, मॉडिफाई करना, अमेंडमेंट करना, ये सारा जो है वो राइट किसका होगा, कोर्ट का होगा. और कोर्ट जो है वो इसके अंदर अपना इंडिविजुअल राइट रखती है. सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू एट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड. अब देखिए एक एग्जांपल देके बता देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सपोज लोकेट हियर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, ये आपकी है स्टेट गवर्नमेंट, इसके नीचे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट काम करे. ठीक है, अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दीज आर द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट.
ठीक है, आया समझ में। अब उसके अंदर क्या होगा, व्हाट हैपन टू, जो है यही लोग जो है वो क्या करते हैं, यही पीपल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्सेस देते हैं, और यही पीपल जो है वो किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या करेंगे, टैक्सेस देंगे। तो कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा एरिया क्या है, कौन सा सोर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और कौन सा सोर्स जो है इनकम जो है रेवेन्यू है वो कौन सी गवर्नमेंट का होगा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, ये किसका होगा, तो दैट वी कैन नॉट, that has been clearly specified in the constitution and it has dual objectives. दो objectives होते हैं, सबसे पहले to safeguard the promote the unity of the country and to accommodate the regional diversity. ये सब करने का यही तरीका है कि सब लोग मिलजुल के काम करें और रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सके, इसके लिए ये काम होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना different types of federalism. There are two type of federalism are there. First one coming together and second one is holding together. अब ये holding together और coming together को देखने के लिए फिर से मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपका। देखो कंट्री के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, you can see that one, USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यूएसए में क्या हुआ था, यूएसए जो है वो आपको पता है मैप के अंदर यूएसए किस तरह से नियर अबाउट ये वाले शेप के अंदर यूएसए है, ठीक है, आया समझ में। इस तरह से यूएसए जो है वो करता है, लेकिन जब हम यूएसए को देखते हैं तो इसके अंदर वेरियस डिफरेंट स्टेट्स हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग स्टेट है जिनके अपने अपने खुद के जो डेडिकेशन एरिया से अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ये क्या है, ये पूरी एक मिलकर के एक कंट्री है यूएसए। आया समझ में, ये पूरी एक कंट्री यूएसए है। तो ये जो है दीज आर द सेपरेट स्टेट्स और यूनिट्स कमिंग टुगेदर में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म द बिगर यूनिट। अपने मन से कोई उनको कुछ नहीं बोला, इन्होंने क्या किया, ये अलग अलग थे तो इन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनानी है उसके लिए उन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने व्हाट दे हैव डन, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग क्या करेंगे कि सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट को बनाने के लिए हमने क्या करा, हम एक कंट्री के रूप में आ जाएंगे और वही हमारी सारी यूनिट्स को क्या करेगा, गवर्न करेगा। they increase their security by pooling the sovereignty and retaining identity. लेकिन कंडीशन क्या थी, इसके अंदर कंडीशन क्या रहती, इनकी अपनी खुद की अपनी अपनी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल दुनिया को दिखाने के लिए ये लोग क्या है, एक कंट्री होंगे और इसीलिए जो है ये यूएसए जो अभी तक का सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री माना जाता था, ठीक है, क्लियर आया समझ में। आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर, और हर एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट मतलब ये जो फॉर्मेशन है इसको बनाने के लिए जो स्टेट होंगे सबको इक्वल पावर होगी और दे आर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द फेडरल, और मतलब और सारे स्टेट अपने स्ट्रॉन्ग होंगे जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब अपन फेडरल गवर्नमेंट का देखते हैं। सी दैट द फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, जो लार्ज कंट्री है वो ये डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर, जैसे यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है, आया समझ में, इंडिया एक लार्ज कंट्री है हमारी, तो उसने क्या करा, इसने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो है वो क्या करेगी, अपने पावर्स को अलग अलग लेवल पे क्या करेगी, डिवाइड करेगी वेरियस स्टेट्स के अंदर, ठीक है, आया समझ में। सारे स्टेट्स को ये पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर को क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पावर को डिस्ट्रिक्ट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, जबकि होल्डिंग टुगेदर में क्या था, ये जो था कमिंग टुगेदर में क्या था, ये जो वेरियस स्टेट्स थे ये लोगों ने क्या करा, ये अपनी अपनी आइडेंटिटी रखते थे, अपना कुछ तो सब कुछ रखते थे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने क्या करा, दे डिसाइडेड दैट दे विल फॉर्म वन कंट्री, और ये एक सेंटर वो उन्होंने क्या करा, कैपिटल बना दिया और वहां पर उसका हेड बना दिया, और उस हेड को जो है वो क्या बना दिया, इट विल बी द गवर्नर स्टेट, कंट्रोल करेगा सारी चीजों का, लेकिन हर कंट्री का अपने अपने इंडिपेंडेंस होगी, अपनी अपनी फ्रीडम होगी और अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ गो थ्रू दैट वन मोर टाइम, सी दैट a large country decided to divide the power among the central and the state government, while in case of coming together formation, independent state come together to form a bigger unit. मतलब क्या है कि ये बहुत सारे स्टेट है, ये जो स्टेट है इसके अंदर यदि हम बात करेंगे तो ये जो एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ये तीसरा स्टेट है, ये चौथा स्टेट है, तो ये आपस में मिल गए यहाँ पर आकर के,
जो फ्लो है वो कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इन्होंने मिलकर के एक यूनिट फॉर्म। और इसमें क्या हुआ, जैसे हमारी कंट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम क्या आया, जैसे ये हमारी कंट्री है तो इस तरह से यदि ऐसा आता है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो उसने क्या करा, यूनिटरी फॉर्म नहीं करके फेडरल फॉर्म ले लिया, और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पावर को क्या करेगा, सारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और इंडिया को करने की कोशिश करेगा। तो ये बाहर जा रहा है, फ्लो ऑफ कंट्रोल इज आउट, और इसमें जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो एक जगह पे आता है, इंटरनल में जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो आपका इस तरह से अंदर आएगा, एक यहाँ से आया, फिर एक दूसरा यहाँ पर आया, फिर तीसरा भी यहाँ पर आके मिल गया इनसे, फिर उसके बाद ये भी आके मिल गया, और यहाँ पर इन्होंने अपना मेन ऑफिस बना लिया, और यहाँ से पूरी चीज, पूरे एरिया को जो जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है उनको कंट्रोल करेंगे। देन आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। अब यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपनी पावर को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो नेचुरली स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल होगी, किससे, स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन इसके अंदर जो है स्टेट्स को क्या होता है, इक्वल पावर होती है, ठीक है, जबकि इनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, अनइक्वल रहती है। आया समझ में, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर, तो स्टेट्स गवर्नमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो स्टेट्स रहती है, दे आर लिटिल बिट वीकर बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। एग्जाम्पल यूएसए मैंने आपको बताया, इंडिया का एग्जाम्पल मैंने बताया, बेल्जियम का अपन ने देखा ही था एग्जाम्पल बहुत अच्छे से, और इसके अंदर इसके अलावा स्विट्जरलैंड और श्रीलंका। ये पॉइंट जरूर याद रखना है, एक तो ये चीज कि क्या हो, कौन कौन सी कंट्री है जो होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर करती है, और उसकी मेजर डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। दैट 2 points you have to be keep it in mind। तीसरा पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट को मिलाकर क्या थर्ड पॉइंट कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट वन है आपका okay, clear? So let us stop the video here.